नहीं एમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તમારો કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય કોઈ વસ્તુ સમજાઈ ના હોય એવી કોઈ વાત હોય તો जी कल भैया जो यहाँ पर एक चर्चा चल रही थी उस चर्चा में सुख जो है ना, बहुत सारी सुविधाएं होने के से वो भी सुख जैसा लगता है। मुझे लगता है काफी बढ़िया चर्चा चल रही थी। फिर वहाँ पर चर्चा आई कि भाई 3 प्रकार के आस्वादन है या 3 प्रकार के सुख है। मुझे लगता है उसको एक बार कंसोलिडेट कर दिया जाए थोड़ा और पूछ भी लिया जाए और बता भी लिया जाए कि क्या स्पष्टता हुई इसका कोई कंक्लूजन निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला नहीं निकला है नहीं अभी थोड़ा वो डाउट है ओपन एंडेड है ओपन नहीं, ठीक एंडेड है। डाउट तो नहीं है पर ओपन एंडेड है उसको समराइज आपको करना हाँ है। तो हमने कल कल बताया कल ये बताया था कि जैसे हमारे पास मोबाइल है આપણી પાસે મોબાઈલ છે પણ મોબાઈલ નો ઉપયોગ આપણે શું કરવું એની સમજણ આપણી પાસે નથી તો મોબાઈલ સાથે આપણે સુખી થઈ શકીએ ના થઈ શકીએ કારણ કે આપણે ગમે તે જોવાના છીએ એ ગમે તે જોઈશું એનાથી આપણી માનસિકતા ઉપર શું અસર પડશે આપણા શરીર ઉપર શું અસર પડી રહી છે આપણા વ્યવહાર ઉપર શું અસર પડી રહી છે એ સમજણ ના હોય તો એનાથી આપણું મન બી પરેશાન થાય ગમે તેટલું જે છે વસ્તુ જોયા પછી ઉપયોગ કર્યા પછી આપણે પોતે જે છે હેરાન થઈ જઈએ કે આ મેં ક્યાં જોયું આ શું કામ કર્યું આ કરવાની જરૂર નથી મારે હે ને શરીર જે છે આમ દોડું થઈ જાય હે ને હાથ દુખવા માંડે આ ગળું દુખવા માંડે પછી ડોક્ટર પાસે જાઓ તો એ બધું આપણને ગમે નહીં ઘરવાળા બૂમો પાડે કે આ શું કરી રહ્યા છો તમે આખો દાડો જે છે હે ને મોબાઈલ 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 આ તો એક એક્ઝામ્પલ છે તો કોઈ પણ વસ્તુ છે તો એ વસ્તુ હોવા માત્રથી આપણે સુખી નથી થઈ ગયા પણ એ વસ્તુની જે સમજ છે આપણી પાસે કે એનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવાનો હે ને એની સમજણથી આપણે સુખી થઈ જઈએ છીએ એ સમજણ પ્રમાણે આપણે એની સાથે જીવીએ તો એનાથી આપણને સુખ મળે પતિ પત્ની સંબંધ છે પતિ પત્ની સંબંધ હોવાથી આપણે સુખી નથી થઈ ગયા હે ને સંબંધની અંદર જો ના સમજ હોય તો રોજ કજીઓ કંકાસ થાય ખ્યાલ આવે એકબીજાની જોડે ઝઘડો થાય વિરોધ થાય આ થાય તે થાય જો સમજણ હોય તો બંને જણા એકબીજાની સાથે પ્રેમથી વિશ્વાસથી હે ને એકબીજાની સાથે નિર્વિરોધિતાપૂર્વક એકબીજાની સાથે જે છે લક્ષ્યપૂર્વક સમજણપૂર્વક જીવી શકે કેમ જીવી રહ્યા છે સાથે સમજણપૂર્વક સંબંધ છે એટલે નહીં પણ સંબંધની સમજણ છે એના કારણે ખ્યાલ આવે એવી જ રીતના આપણી અંદર પણ એક દુનિયા ચાલી રહી છે જેનું નામ છે મન વૃત્તિ ચિત્ત બુદ્ધિ ને આત્મા હે ને તો એની આપણી પાસે સમજણ હોય તો એનાથી આપણે સુખી થઈ શકીએ જો આપણી પાસે મનની સમજણ ના હોય કે કયા પ્રકારના આસ્વાદન મારી અંદર હું લેવા માટે કામ કરી રહ્યો છું કયા પ્રકારના સુખની માટે હું તલાશ કરી રહ્યો છું હે ને ખ્યાલ આવે મારે સુખ તો નિરંતર જોતું હતું હે ને જે સુખ જોઈતું હતું મારે જે સુખ જોઈતું હતું એ નિરંતર જોઈતું હતું પણ મેં આખી જિંદગી જે કહેવાય કે પ્રિય હિત લાભમાં કાઢી દીધી ખ્યાલ આવે અને પ્રિય હિત લાભનું જે સુખ હતું એ ક્ષણિક હતું થોડી વાર સુખદાયક લાગે થોડી વાર નથી લાગતું કેમ કારણ કે આજે પ્રિય હિત લાભ આધારિત સુખ છે એ ઇન્દ્રિય મૂલક સુખ છે ઇન્દ્રિયોને સારું લાગે શરીરને સારું લાગે હે ને અથવા તો કંઈક લાભ થઈ ગયો જે શરીર માટે ઉપયોગી છે તો એ બધા જે સુખ છે એ સુખ જે છે ક્ષણિક છે જી મેં તો સુખની વ્યાખ્યા એ છે સમજદારીપૂર્વક વ્યવસ્થા માં જીવવું એનું નામ છે સુખ જી સમજદારી કેળવવી એ વસ્તુ સાથેનો કે ભૌતિક વસ્તુ સાથેનો કે આપણા સાથેના જે સામાજિક જીવો છે એની સાથે તો સમજદારી જે છે હે ને એ સમજદારી નો અર્થ શું છે કે જ્ઞાન વિવેક અને વિજ્ઞાન આ ત્રણેયની સમજ જ્ઞાનની પણ સમજ વિવેકની પણ સમજણ અને વિજ્ઞાનની સમજણ જ્ઞાન એટલે શું જ્ઞાન એટલે અસ્તિત્વ કેવી રીતના બન્યું છે આ સંપૂર્ણ જે અસ્તિત્વ છે
એ કેવી રીતના બન્યું છે, આ ધરતી કેવી રીતના બની, આ ધરતી ઉપર માણસો ક્યારે આવ્યા, આ ધરતી ઉપર જીવ જાનવર ક્યારે આવ્યા, આ ધરતી ઉપર જે છે વૃક્ષ વનસ્પતિ કેવી રીતના થઈ, હે ને? ખ્યાલ આવે છે? અને માણસનો ધર્મ શું છે, માણસનો સ્વભાવ શું છે, માણસના ગુણ શું છે, માણસાઈના રૂપ શું છે, પછી વાઘનો સ્વભાવ શું છે, વાઘનો ધર્મ શું છે, હે ને? વાઘનો ગુણ કયો છે એને સમજો. પછી તુલસીનો ગુણ શું છે, તુલસીનો સ્વભાવ શું છે, તુલસીનો ધર્મ શું છે, સંપૂર્ણ અસ્તિત્વની અંદર જે કંઈ પણ છે બધાની સમજણ હોવી, એનું નામ છે અસ્તિત્વનું જ્ઞાન. પછી બીજી વસ્તુ છે જીવનનું જ્ઞાન. જીવન જ્ઞાન એટલે આજે મન વૃત્તિ ચિત્ત બુદ્ધિ શું છે, હે ને? આ મન વૃત્તિ ચિત્ત બુદ્ધિ બન્યું શાનાથી છે, એ શરીરની અંદર કઈ રીતના કામ કરે છે, શરીરની અંદર જે સંકેતો આવી રહ્યા છે એ જીવન કઈ રીતના મેળવી રહ્યું છે, એ જીવન સંકેતોને કેવી રીતના આપી રહ્યું છે, હે ને? આ જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, ખ્યાલ આવે? જીવનનું લક્ષ્ય શરીર સાથે શું છે, સંબંધોમાં જીવનને શું અપેક્ષાઓ છે, શું મેળવવું છે, આ બધું જીવન જ્ઞાનનો ભાગ છે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે જેનું નામ છે માનવીયતા પૂર્ણ આચરણ. એટલે આ જે જીવન છે એ જ્યારે માનવ સ્વરૂપમાં જીવી રહ્યું છે એકબીજાની સાથે, ત્યારે એને વ્યવહાર કેવી રીતના કરવાનો છે, વ્યવહાર કરવાનો ઉદ્દેશ શું છે, વ્યવહારથી પ્રાપ્ત શું થઈ રહ્યું છે, ખ્યાલ આવે છે? એનું નામ છે માનવીયતા પૂર્ણ આચરણ. તો આ જ્ઞાનના ભાગ છે. જ્ઞાન એટલે શું? અસ્તિત્વ દર્શન જ્ઞાન, જીવન જ્ઞાન અને માનવીયતા પૂર્ણ આચરણ. વિવેક, વિવેક એટલે લક્ષ્યનું જ્ઞાન. લક્ષ્ય, વિવેક એટલે શું? લક્ષ્ય સ્પષ્ટ થઈ ગયું. તમને લક્ષ્ય સ્પષ્ટ ખબર પડી ગઈ કે એ વિવેકની અંદર ત્રણ કેટેગરી આવે. એક આવે જીવન નું અમરત્વ, શરીરનું નશ્વરત્વ અને વ્યવહારના નિયમનું જ્ઞાન. એનું નામ વિવેક. વિવેક એટલે શું? જીવન અમર છે. જ્યારે જીવન અમર છે એને આપણે સમજીએ તો આપણે એકબીજાની સાથે, હે ને, જીવન સમજીને એકબીજાની સાથે જીવીએ. જો આપણે પોતાને શરીર માનીએ, સામેવાળાને બી શરીર માનીએ, તો જીવવાનો કાર્યક્રમ શું નીકળે? આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન. આહાર કરો, નિદ્રા કરો, ભય કરો અને મૈથુન કરો. આટલી ચાર જ વસ્તુ નીકળે. જ્યારે આપણે પોતાને જીવન સમજીએ, સામેવાળાને જીવન સમજીએ, ત્યાંથી જીવન જીવવાની શરૂઆત થાય. જિંદગીની જે ખુશહાલી છે, જિંદગીની અંદર જે ઉત્સાહ છે, ઉમંગ છે, એની શરૂઆત જીવન સમજવાથી થાય. કારણ કે ખ્યાલ આવે કે હું બી અમર છું અને સામેવાળો બી અમર છે. જેટલા બી મનુષ્ય છે એમાં જે જીવન છે એ અમર વસ્તુ છે, એ ક્યારે મરવાની નથી, હે ને? તો ગળપણમાં પણ આપણે એની સાથે સારી રીતે જીવી શકીએ, યુવાનીપણમાં પણ સારી રીતે જીવી શકીએ અને બાળપણમાં પણ એની સાથે સારી રીતે જીવી શકીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે એમ સમજીએ કે આ જીવન છે અને જીવન એક જ્ઞાનાર્જન કરવા ઈચ્છે છે, સમજદાર થવાની ઈચ્છા દરેક જીવનમાં છે. કારણ કે દરેક જીવન સુખી થવા ઈચ્છે છે, દરેક માનવ જીવન સુખી થવા માટે ઈચ્છે છે. ખ્યાલ આવે છે? આજે આપણે આટલા લોકો બેઠા છીએ, આપણે કોઈને બી પૂછીએ કે ભાઈ તમે તમારે સમજદાર થવું છે કે નથી થવું, તો શું કહેશે? થવું છે. બધા એમ કહેશે કે મારે સમજદાર થવું છે. આપણે પૂછીએ કે તમારે સુખી થવું છે કે નથી થવું? સુખી થવું છે. તમારે સમૃદ્ધ થવું છે કે નથી થવું? સમૃદ્ધ થવું છે. હવે કોઈને આપણે પૂછીએ તમારે ગરીબ થવું છે કે નથી થવું? નથી થવું. તમારે દરિદ્ર થવું છે કે નથી થવું? તમારે દુઃખી થવું છે કે નથી થવું? છતાંય આપણે છીએ, આપણે દુઃખી છીએ. કેમ? આપણે થવું નથી તો એ કેમ છીએ દુઃખી? કારણ કે સમજણ નથી. જે થવું છે એ કેવી રીતના થવાય એની સમજણ આપણી પાસે નથી. તો સમજણ એટલે શું? સમજણ એટલે જ્ઞાન સમજણમાં આવી ગયું, વિવેક સમજણમાં આવી ગયું અને વિજ્ઞાન સમજણમાં આવી ગયું. જ્ઞાન એટલે શું? અસ્તિત્વ શું છે, જીવન શું છે, માનવીયતાપૂર્ણ આચરણ શું છે એની સમજણ. વિવેક એટલે જીવનનું અમરત્વ સમજાઈ જવું કે જીવન કઈ રીતે અમર છે, એવા કયા પ્રકારનું પરમાણુ છે જીવન જેના દ્વારા એની અંદર અમરત્વ આવી ગયું છે. શરીર કયા પ્રકારના પરમાણુઓનું બનેલું છે જેની કારણે એ નશ્વર છે. અને વ્યવહારની અંદર જ્યારે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, જીવનના અમરત્વ અને શરીરના નશ્વરત્વને સમજીને
ત્યારે એકબીજા સાથે કઈ રીતના વ્યવહાર કરવાનો છે હે ને? જ્યારે આપણે બીજાને શરીર માનીએ અને શરીરથી જ આપણે તૃપ્ત કરવાનો કાર્યક્રમ બનાવીએ તો એની જીવનશૈલી અલગ હોય. કોઈ માણસ પોતાને આત્મા માને છે, બીજાને બી આત્મા માને છે, તો એની જીવનશૈલી અલગ છે. જ્યારે કોઈ માણસ જીવન અમર છે અને શરીર નશ્વર છે, એની માનસિકતાથી વ્યવહાર કરે છે તો એના વ્યવહારના નિયમો અલગ છે. ખ્યાલ આવે? જી. એનો મતલબ આપણું જે શરીર છે એ જે અણુ પરમાણુથી બનેલું છે, હાજી હાજી. અને જે જીવ છે આપણી અંદર, જીવન બી પરમાણુ છે, શરીર બી પરમાણુનું બનેલું છે. શરીરના જે પરમાણુ છે એ ગઠનશીલ પરમાણુ છે. ગઠનશીલ એટલે શું કે એ ગઠન થાય અને ગઠનથી અલગ થાય, એનું એક બોન્ડિંગ બને ને બોન્ડિંગ જે છે એનું વિખૂટવું પડે. જીવનરૂપી પરમાણુ એવો છે કે જેનું એકવાર ગઠન થઈ ગયું પછી એ ગઠન છૂટું નથી પડતું. એનું નામ અમરત્વ છે. જીવનનું અમરત્વ એ આપણે પોતે છીએ. ખ્યાલ આવે છે? હા, દરેક મનુષ્યની અંદર એ જીવનનું અમરત્વ છે. એનો મતલબ શરીર છૂટ્યા પછી પણ એનું બોન્ડિંગ છૂટું નથી પડતું. નથી પડતું. એ બોન્ડિંગ શાનું છે? એ બોન્ડિંગ છે મન, વૃત્તિ, ચિત્ત અને બુદ્ધિ અને આત્માનું બોન્ડિંગ છે. આ જે પાંચ વસ્તુ છે ને, એનું એક જે છે બોન્ડિંગ છે. બોન્ડિંગ કેવું હોય કે કોઈ પણ પરમાણુ હોય તો એ પરમાણુના મધ્યાંશમાં અંશ હોય, એના પરિવેશ હોય. આવી રીતના એના પરિવેશ હોય, હે ને? આ રીતનું એક પરમાણુનું સ્ટ્રક્ચર હોય. ખરા? તો આ જે મધ્યાંશ છે એ મધ્યાંશની અંદર જે પરમાણુ છે, પરમાણુ અંશ છે, આના ટોટલ આનું નામ પરમાણુ કહેવાય. અને આ પરમાણુ અંશ છે એ પરમાણુ અંશ એનું નામ આત્મા છે. આ એનો જે પહેલો પરિવેશ છે એનું નામ બુદ્ધિ છે. આ જે બીજો પરિવેશ છે એનું નામ ચિત્ત છે. આ જે ત્રીજો પરિવેશ છે એનું નામ વૃત્તિ છે. અને આ જે લાસ્ટ પરિવેશ છે એનું નામ મન છે. ખ્યાલ આવે છે? અને આ જે જીવન પરમાણુ છે એ આપણું જે શરીર છે, હે ને? આ શરીરની જે પ્રત્યેક પ્રાણ કોશિકા છે, શરીર જે છે પ્રાણ કોશિકાઓનું બનેલું છે. તો જેમ ગરણી હોય ને, ગરણી, એ ગરણીમાં આપણે દૂધ ગાળીએ તો શું થાય છે? દૂધ ઉપરથી નીચે આવી જાય છે, હે ને? એવી રીતના આ જે જીવન છે પરમાણુ એ શરીરની પ્રત્યેક પ્રાણ કોશિકાઓમાંથી જે છે ને એ આમ ફર્યા કરે છે કન્ટિન્યુઅસ. શાના માટે? કે જીવન દ્વારા જે શરીરની કોશિકાઓ છે એની અંદર જીવંતતા બની રહે. જીવંતતા બની રહે તો જે શરીરના સંકેતો છે જીવન સુધી પહોંચવાના એ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે. ખ્યાલ આવે છે? તો જો જ્યારે જીવન શરીરથી નીકળી જાય છે, જીવન શરીરમાં નથી રહેતું, ત્યારે શરીર જે છે એ વિરચિત થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે? અને જ્યાં સુધી જીવન શરીરમાં રહે છે ત્યાં સુધી શરીરની અંદર જીવંતતા બનેલી રહે છે. બરાબર છે? તો અલ્ટિમેટલી આ જીવન એ શરીરને કેમ ધારણ કર્યું છે? કારણ કે એને જાગૃતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે, જાગૃતિ માટે, અને જાગૃતિને પ્રમાણિત કરવાનું છે. જાગૃતિ એટલે શું? જાગૃતિ એટલે આ સુખ, વૃત્તિની અંદર શાંતિ, અને ચિત્તની અંદર સંતોષ, બુદ્ધિની અંદર આનંદ અને આત્માની અંદર પરમ આનંદ. આ વસ્તુ જે છે એ અનુભૂત થઈ જવી. જીવનની અંદર સુખ, શાંતિ, સંતોષ, આનંદ એવો પરમાનંદ અનુભૂત થઈ જવી, એનું નામ છે, શું નામ છે? જાગૃતિ. ખ્યાલ આવે છે? અને જાગૃતિનું પ્રમાણ શું છે? જાગૃતિનું પ્રમાણ એ છે કે જે માનવ પરંપરા છે, માનવ પરંપરાની અંદર સમાધાન, સમૃદ્ધિ, અભય, સહઅસ્તિત્વ અને સહઅસ્તિત્વ આ પ્રમાણિત થઈ જવું એ જાગૃતિનું પ્રમાણ છે. જાગૃત થવું અને જાગૃતિને પ્રમાણિત કરવી. ખ્યાલ આવે? એનું નામ જીવન વિદ્યા છે. જીવન વિદ્યા એટલે જાગૃતિને સમજવું અને જાગૃતિના પ્રમાણને સમજવું. આટલું સમજવું એનું નામ જીવન વિદ્યા છે. અને એ જ સુખની પરંપરા. હા, સુખની પરંપરા બનાવવાની વાત છે. એ નિષ્કર્ષ. તો આપણે શું વાત કરતા હતા? હાજી.
આ ભૌતિક શરીર છૂટ્યા પછી હા આપણે જે આ બધી વસ્તુના આસ્વાદન માટે શરીર છે એ છૂટ્યા પછી જે આપણે જે સમજ્યા છીએ એ શું આત્મા સાથે રહે છે? એટલે આત્મા સાથે ક્યારે રહે? જ્યારે આપણે આ પ્રકારના આસ્વાદનોમાં લિપ્ત હોઈએ અથવા તો આ પ્રકારના આસ્વાદનો માટે પ્રયત્નશીલ હોઈએ. અત્યારે આપણે ટોટલી કાર્યક્રમ આ પ્રકારના આસ્વાદનનો છે. એટલે જ્યાં સુધી શરીર રહે છે ત્યાં સુધી સમજણ રહે છે. ખ્યાલ આવે? જ્યારે આપણે શરીરથી અધિક કોઈ વસ્તુ છે જેને આપણે અહીંયા જીવન કહી રહ્યા છીએ, એ જીવનની સમજણ હોય તો એ પ્રકારની સમજણ મૃત્યુ પછી પણ રહે. અને એ સમજણ ના હોય, ખાલી શરીરની સમજણ હોય તો શરીર સુધી રહે, શરીર પછી જે છે પાછી ના. હા જી અર્જુન. જો જીવન એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં એન્ટર કેવી રીતે કરે? એન્ટર જે છે પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી કરે અને આવશ્યકતાથી કરે. ખ્યાલ આવે? કોઈ શરીર રચના કોઈ જગ્યાએ બની રહી હોય માતા પિતા દ્વારા શરીરની અંદર, એ આવશ્યકતા છે. અને જીવન છે એની અંદર જાગૃત થવાની ઈચ્છા શક્તિ છે, અને જાગૃતિની ઈચ્છા છે એના દ્વારા જે છે બંનેનો યોગ થાય. લગભગ ચોથા અથવા તો પાંચમા મહિને જીવન એ શરીરની અંદર જે છે પ્રવેશ કરે. ખ્યાલ આવે? 4.5 महीने जब होते हैं बेटा, तो अपने आप की जो माँ का गर्भ होता है ना, उसमें एक समय पर जो ये शिशु होता है वो घूमने लगता है. उसको पर माँ को पता भी चलता है कि अब बच्चा घूमना शुरू हुआ. तो जब तक जो ये बच्चा गर्भ में रहता है तब तक वो हिलता डुलता नहीं है. तो वो हिलता डुलता नहीं है ना. जैसे ही जीवन प्रवेश करता है तो जीवन का काम क्या है? शरीर की जितनी कोशिकाएं उनको जीवंत बना के रखना. तो उसी क्षण से शरीर जो भ्रूण होता है उसमें हिलन डुलन महसूस होती है. तो इसका मतलब है जीवन अभी उस शरीर को चलाता है. उससे पहले क्या होता है? तो उससे पहले माँ का जो जीवन रहता है वही उस भ्रूण को जीवंत बना के रखता है. इसका मतलब पिंड रहता है. बिल्कुल अब बिल्कुल उसमें पिंड जब रहता है. जीव आता है उसके बाद में ही शरीर की संरचना शुरू होती है. बिल्कुल 4.5 महीने के बाद 4.5 जिस क्षण शरीर घूमना शुरू किया, जीवन होने का प्रमाण है कि शरीर में हिलन डुलन चलती रहे. और प्रोसेस भी शुरू होती है हर ऑर्गन बनने की. ऑर्गन बनने की प्रोसेस पहले दिन से शुरू हो जाती है. अच्छा. हाँ. तो जब हृदय ऑर्गन जब बन जाते हैं ना, जब ब्रेन डेवलप हो जाता है तभी तभी जीवन आता है. क्योंकि ब्रेन से ही जीवन जो है तंत्रित होता है. बिल्कुल. तो ब्रेन बहुत अच्छा, डेवलपमेंट बहुत अच्छा. पूरा हुआ. बहुत बढ़िया. इसीलिए आप लोग को पता होगा शायद, जैसे ही जब कोई भी माँ गर्भ धारण करती तो कहते हैं 3-4 महीने में लोगों को मत बताओ, क्योंकि अभी उसमें जो है वो शरीर हो सकता है अगर मेधस ठीक नहीं बने तो मिसकैरेज या क्या बोलते हैं हिंदी गुजराती में, मतलब गर्भ हट चला जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है ना. तो गर्भ नष्ट होने का मतलब यदि ब्रेन सही नहीं बना, फंक्शनल ब्रेन नहीं बना जिसको जीवन जिससे तदाकार होकर चला पाए, तो फिर वो गर्भ नष्ट हो जाता है. ये अस्तित्व में व्यवस्था है, ये बहुत सुंदर व्यवस्था है. और आपको जान करके हैरानी होगी कि मानव शरीर रचनाएं जितनी भी अभी इस धरती पर हैं, जब भी मतलब इस धरती की सभी स्त्रियों का एक गणित लगाएं तो 25% मिसकैरेज होते हैं. मतलब अगर 100 महिलाएं गर्भवती हुई हैं एक समय में तो उसमें से 25 गर्भ नष्ट होंगे ही. ये न्यूनतम एक आंकड़ा है. तो इसका मतलब अस्तित्व में इतनी बढ़िया व्यवस्था है. जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे फल फ्रूट भी होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, कुछ ही वो आगे बढ़ते हैं. तो एकदम परफेक्ट ब्रेन, मतलब अस्तित्व में क्या व्यवस्था है कि पूर्ण स्वस्थ शरीर वाला मानव संतान जन्मे. उसके लिए अपनी पूरी दम, मतलब आप देख सकते हैं अस्तित्व में क्या दम लगता है. जो अच्छा अच्छा भ्रूण है वही प्रगति हो सकता हाँ है. हाँ ये तो उसको स्वस्थ इसके भ्रूण, रहता है. स्वस्थ भ्रूण, स्वस्थ भ्रूण. उसके साथ मन भी जुड़ा है. माँ का मन. नहीं, माँ का मन जो है वो प्रभाव के रूप में रहता है जरूर, है ना. तो माँ का मन अगर खराब हुआ तो फिर उस बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे. हार्मोनल इम्बैलेंसेस का मतलब है शरीर रचना के लिए जो पोषक तत्व या जो हार्मोन चाहिए थे वो डिस्टर्ब हो गए मतलब वो भ्रूण अस्वस्थ हो गए. इसीलिए हम कहते हैं माँ को उस समय अच्छा मन होना चाहिए. अच्छा मन मतलब हार्मोन, क्योंकि ये जो जीवन मैं थोड़ा सा बोलूँगी अभी, और ये विषय को भी थोड़ा सा रखूँ. ये एक बहुत अच्छी बात है, शायद आपका इंटरेस्ट बनता है कि बोल देती. माइक लगा.
क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सी बात और रख देती हूँ जो नए लोग हैं। तो मध्य में एक अंश, एक बात ये समझ लीजिए कि जो पूरा अस्तित्व है ना, ये अंशों से मिलकर के बना है। तो इस जो मिट्टी है, ये जो लोहा है ना, ये प्लास्टिक है, या फिर जीवन परमाणु, इन सभी के अंश रूप में बिल्कुल एक ही चीज है। अंश रूप में हम लोग कोई विशेष वस्तु से नहीं बने। तो मध्य में एक अंश है। उसके बाद पहला परिवेश। परिवेश का मतलब ऐसा कोई सर्कल नहीं है, केवल वो जो घूम रहे हैं, जैसे घूमता है पंखा, तो आपको 3 पंख की जगह आपको एक चक्कर दिखाई पड़ता है, उसको हमने कहा। और यहाँ पर ऐसे 2 अंश घूम रहे हैं, तो ये हो गया आपका आत्मा। उसके बाद 2 परिवेश, 2 अंश वाला जो परिवेश है, उसकी पहला परिवेश है वो है बुद्धि। उसके बाद है यहाँ पर चित्त, और चित्त में कितने अंश घूम रहे हैं यार? 8। तो ये 1 2 8। और उसके बाद यहाँ पर घूम रहे हैं 18, है ना? तो ये है वृत्ति। और उसके आगे है 32 अंश वाला मन, है ना? इस तरीके से 32 अंश घूम रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ा साइंस पढ़ा है उनको ये पता होगा कि ये मॉडल भी अपने आप में कैसा है, जहाँ पर ये 2 8 18 32 ये गठन की स्थिरता को प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों ने, शायद आपको याद हो, सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम के पहले परिवेश से क्यों वो अंश निकल जाता है? क्लोराइड में बाहरी परिवेश में 7 अंश होते हैं, तो वहां जाकर क्यों एक अंश? क्योंकि हर परमाणु स्थिरता चाहता है। क्यों चाहता है, ये प्रश्न है, और उत्तर शायद आएगा। तो अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व में हम सब स्थिरता की तरफ गतित होना चाहते हैं। तो ये है, इसको कह रहे हैं जीवन परमाणु। और ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का अनुसंधान है। इससे पहले भी परंपरा में आपने मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, ऐसे शब्दों को आपने सुना है, लेकिन उनका ऐसा प्लेसमेंट नहीं है कि जीवन एक परमाणु है। और हर एक जगह पर अलग अलग बात करी। जैसे कहा है कि आत्मा जो है परमात्मा में विलय हो जाती है, तो हमने आपके साथ एक व्यापक सत्ता रूप में परमात्मा को भी कहा था। और यहाँ पर कह रहे ऐसा नहीं है, विलय नहीं होती है, उसको अनुभव करती है। ये हर्ष भाई आदि रखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं रख रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी बात सुख वाली कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही लोगों को कितना पता है, वहां से पहुंच जाएगी बात। तो ये जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के पीछे आप स्लाइड में देख रहे थे, तो मन का बेटा एक डिजाइन है, कुछ डिजाइन है। मन में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप 32 अंशों को महसूस करो, लेकिन इनसे होने वाली क्रिया को महसूस कर सकते हो। तो ये जो है 2 प्रकार की क्रियाएं हम में होती है, इसको आप महसूस कर सकते हो। आप कोई चुनाव करते हो और आप उस किसी चीज को आस्वादित करते हो, मतलब किसी चीज को आप फील करते हो। आप ये 2 चीजों को महसूस करके बता सकते हो हमें। तो हम ये कह रहे हैं जहाँ चयन और आस्वादन हो रहा है, इसको हम सब अभी महसूस कर सकते हैं। उस स्थान का नाम या उस क्रिया का नाम मन है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक, तो मन में, अब मैं मन को हटा देती हूँ, यहाँ पर देखते हैं केवल चयन आस्वादन, है ना? तो हम कुछ चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं? अब मन जो है स्वभाव से रसज्ञ है, इसको रस चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए, है ना? तो जिसको जहाँ सुख, अब सुख को वो हर एक व्यक्ति कहीं कहीं सोचता है ये करूँगा, जैसे उसको लग रहा है डिजाइन बनाऊंगा तो ज़्यादा सुख है, किसी को लग रहा है ध्यान से सुनूंगा ज़्यादा, उसमें कोई वो क्रिटिसिज्म नहीं है। एक बात बता रही हूँ, जब मुझे लग रहा है कि चलो मैं बताऊँ तो मुझे आपको बता करके सुख मिल जाएगा, ऐसा सब है ना, कुछ कुछ चल रहा है, इसी के फलस्वरूप हम लोग कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो कुछ बातों को समझे। तो ये जो जीवन का बाहरी भाग, ये मन है, ये मन जो होता है ये तदाकार होता है हमारे ब्रेन से। ब्रेन के लिए कल क्या शब्द बताया गया था? मेधस, मेधस। तो ऐसे रखते हैं, ये रहा जीवन परमाणु, ठीक है? और ये जीवन परमाणु क्या करता है? जो हमारा ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इस पर संकेतों को प्रसारित करता है और इससे जो संकेत होते हैं उसको ग्रहण करता है। आप लोग को और विस्तार से सुनना होगा तब क्लास में, क्योंकि फिर डिटेल है, एक दिन का पूरा काम है। ये कैसे होता है ये सब आपको बता सकते हैं। तो संकेतों को ग्रहण करता है, संकेतों को प्रसारित करता है। और ब्रेन में आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है, वहां से हार्मोन स्राव होते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ऐसी 6 ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती है। तो जीवन जैसा महसूस करता है, मान लो बहुत क्रोध महसूस करता है तो पूरा शरीर कांपने लगता है। तो एक प्रकार का ये संकेत जब आता है ना, तो पूरे शरीर में एक अव्यवस्था हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आवेश।
ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको जीतना क्यों है? तो पता चला कि शरीर में अस्वस्थता के कारण है। और वो क्यों है? मध्यस्थ दर्शन कह रहा है इसलिए क्योंकि जीवन का जो प्रयोजन है, जो अनुक्रम है, वो समझ में नहीं आया। जैसे कल भैया ने बताया कि शरीर किस लिए है? खेती के लिए, है ना। और एक बात है, खेती किस लिए है? शरीर के लिए। तो अगर अनुक्रम को हमने उल्टा पकड़ा, इसको कह रहे हैं भ्रम, और अनुक्रम को सीधा पकड़ लिया, इसको कह रहे हैं समझ। तो बस केवल हमको इस पूरे शिक्षा का कार्यक्रम क्या है? सारे सही अनुक्रमों को आपको बता देना है। हमारी पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा ये है कि शिक्षा सही अनुक्रमों को बिठा नहीं पाई है। तो ये हमारी कंप्लेंट है। कंप्लेंट के साथ हमारे पास कार्यक्रम भी है, तो ये पूरा उसके लिए कार्यक्रम बनाया। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन किससे कनेक्टेड है? हमारे बॉडी से कनेक्टेड है ना। तो जीवन में हम जिस आधार पर चयन हुआ, चयन होने के बाद ब्रेन को संकेत आया, ब्रेन कहेगा चलो हाथ उठाओ, पैर, अब चलो ये काम करते हैं। तो इस तरीके से ये एक तालमेल बना रहता है। ठीक, अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आस्वादन, है ना। तो मन क्या है? हम सीधा सीधा बोलते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं, मतलब हम ये आस्वादन करना चाहते हैं। ये सब समझो आत्मा, बुद्धि, चित्त और वृत्ति और मन, हाँ, ये सब ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। केवल मन जुड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये है ना, विस्तार में जाएगा। अब 5 दिन का देखिए, मन जो है ब्रेन से कनेक्टेड है ना। तो ब्रेन के संकेत को मन ग्रहण करता है, मन के संकेत को ब्रेन ग्रहण करता है। वृत्ति जो है मन से कनेक्टेड है, तो वृत्ति के संकेत को ये ग्रहण करता है ना। वृत्ति जो है मन को देख लेती है। तो इस तरीके से ये सब आपस में एक तरीके से ना देखें तो इंटरकनेक्टेड है, इस तरीके से। लेकिन क्या ब्रेन से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है? तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टेड सभी है। देखो ना, सब पूरा कनेक्शन बन गया। मदरबोर्ड तो यही है, मतलब मेन तो यही मदरबोर्ड है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है, ये कह सकते हैं ना। पकड़ में आई बात, ऑपरेटर नहीं है। वो जैसे कोई मुर्दा है, उसके पास ब्रेन तो है लेकिन जीवन नहीं है, तो फिर हम मानव नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? मुर्दा। देखो, एक छोटी सी और बात समझो। जैसे हम कहते हैं शरीर, हम त्वचा के द्वारा ठंडा और गर्म महसूस करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सच है? क्योंकि मुर्दा के पास नाक भी है, त्वचा भी है, सब कुछ है, तो क्या मुर्दा देखता है? मुर्दे का जैसे ही मुर्दा हुआ तो उसको ठंडे बर्फ की सिल्ली में लटा दिया गया, और मुर्दा हुआ तो उसको आग में डाल दिया गया। चिल्लाता है कभी भी? तो ये जो शरीर के माध्यम से जो संकेत ग्रहण करता है, वो कौन करता है? जीवन। और जीवन में भी मन है। अब देखिए, ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मन में जो ठंडा, गरम, है ना, खट्टा, मीठा, जितने भी प्रकार के आप स्वाद लेते हैं, उन सबको लेने का डिजाइन, ठीक है। दिलवा इसको और विस्तार में किसी अध्ययन सत्र में रख दूंगी आपके सामने। थोड़ी सी मैं बात करना डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कितना एक्सपोजर है, उस हिसाब से मैं बात को रख दूं, ताकि आप कनेक्ट कर पाए हर्षभाई की बात से। तो मन है ना, 3 प्रकार के आस्वादनों को ग्रहण करने के लिए इसका एक डिजाइन बना हुआ है। अस्तित्व में ये डिजाइन है। क्या प्रकार के डिजाइन है? एक है रुचि मूलक आस्वादन, ठीक है। अब देखो, ये जो मन है, ये किससे कनेक्टेड था? ब्रेन से। और ब्रेन किससे कनेक्टेड है? हमारी बॉडी से। बॉडी का क्या प्रयोजन है? बॉडी का प्रयोजन है जागृति को प्रमाणित करना, मतलब समझ को प्रमाणित करना। अभी लिखिए मत, मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये सेटिंग बैठ गई तो बैठ गई, ठीक है। तो इसका कुछ प्रयोजन है अस्तित्व में, ठीक है। अब देखिए, 3 प्रकार के आस्वादनों को करने के लिए इसका डिजाइन बना हुआ है। रुचि मूलक का मतलब होता है कि जो बॉडी से जितने भी प्रकार के इसमें संकेत आते हैं, उनको ग्रहण करता है। जैसे इसको छुआ, एकदम से करंट लग गया या गर्म लग गया, तो मेरा हाथ क्या तुरंत हट जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे संकेत, मान लो कोई व्यक्ति से मुझे लगे कि नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे। ऐसा हम बहुत सारे निर्णय करते रहते हैं। तो बॉडी से हमको कुछ कुछ संकेत मिलते रहते हैं, है ना। बॉडी के माध्यम से ब्रेन को, ब्रेन के माध्यम से मन को। तो रुचि मूलक आस्वादन में आप लोगों ने बताया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, के माध्यम से जितने भी संकेत
होता है, इसका एक प्रयोजन है रुचि मूलक का। क्या प्रयोजन है? शरीर में अनुकूलता को बनाए रखना, है ना। अनुकूल, जैसे ठंड लगने लगी तो स्वेटर पहन लो, शॉल ले लो, गर्म पानी पी लो, कुछ कुछ हम निर्णय करते रहते हैं। तो ये अनुकूलता को बनाए रखना, तो बॉडी में अनुकूलता से ज्यादा बड़ी बात है स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो ये जो हमारे पास वृत्ति में प्रिय हित और लाभ नाम की जो दृष्टियां हैं, इनका एक प्रयोजन है। प्रिय हित और लाभ दृष्टि का प्रयोजन क्या है? शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखना। ये कोई गड़बड़ दृष्टि नहीं है। ये इस दृष्टि का कुल प्रयोजन कितना है कि हम हमारा ये स्वास्थ्य बना रहे। स्वास्थ्य क्यों बना रहे? अब स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी का काम आएंगे। तो रुचि मूलक ये जितने भी प्रकार के आस्वादन है, इसका प्रयोजन है। दूसरे प्रकार के आस्वादन है मूल्य मूलक। ये मूल्य मूलक कैसे होते हैं? संबंधों के जो आस्वादन है, जो कल लिया ने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, ये जीवन भर याद रहता है। उस व्यक्ति का जब नाम लीजिए वही अच्छी बात याद आ जाती है। तो ये कैसे है? क्षणिक। क्षणिक का मतलब अभी भूख लगी, खाना खाया, थोड़ी देर शांत रहा, फिर भूख लग गई, फिर कुछ खाना खाया, फिर तो क्षणिक का मतलब क्षण क्षण नहीं है, एक मतलब कि ये खत्म होगा, फिर से आपको उस चीज की वो क्रेविंग चालू होगी। तो शरीर का जिस प्रकार का नेचर है, शरीर भी क्षणिक एक समय के बाद हटता है, तो उस प्रकार से ये भी ऐसा ही है ना। मूल्य मूलक क्या है? संबंधों के लिए। और उसके बाद है लक्ष्य मूलक। तो मन का ये डिजाइन है। तो अब ये किसके लिए है? ये व्यवस्था के लिए, संतुलन के लिए, सदा सदा के लिए। तो अभी तक जो हमारी जो सुख, जो जिसको कह रहे हैं निरंतर सुख क्यों नहीं हुआ? तो भाई हमारा अभी तक कुल मिला के गाड़ी यहीं तक चल रही है, ठीक है। तो मूल्य मूलक क्या है? संबंधों को पहचानने के अर्थ में। तो संबंध कहाँ तक पहचानने हैं? अखंड समाज तक। कहाँ तक? अखंड समाज तक। तो जैसे कि अभी हम संबंध को पहचान रहे, माता पिता, है ना, पुत्र पुत्री या भाई बहन, इस तरह के 7 संबंध हैं जिनको भी आप सुनेंगे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है? हम ये जो संबंध पहचान रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? शरीर विधि से पहचान लेते हैं। ये मेरी माँ यहीं तक, ये मेरा भाई, मेरा ये भाई, जो हिंदू भाई भाई है ना, या इस देश के लोग मेरे भाई, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, है ना। हम लोग इस तरीके की बातों में जब चले जाते हैं तो इसको हम पूरी मानव जाति के साथ नहीं पहचान पा रहे हैं। ये अखंड समाज मतलब पूरी मानव जाति। तो उसके कारण से क्या होता है? ये संबंध हम खंडित पहचान लेते हैं, किसी दूरी तक पहचानते हैं। तो जिस दूरी तक पहचानते हैं उनका तो हम खंडन करते हैं और उसके बाद युद्ध करने लगते हैं। तो ये दीर्घकालिक ना होकर के फिर से टूट जाता है हमारा, है ना। तो संबंधों को इतनी दूरी तक पहचानना, इससे क्या है? अखंड समाज बनेगा, ठीक है। तो इसका आस्वादन दीर्घकालिक है। इसको और विस्तार से हम लोग क्लास में करेंगे या समय मिलेगा तो इसको और कराएंगे। उसके बाद लक्ष्य मूलक मतलब अखंड समाज के साथ सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन, ठीक है। तो अगर चारों अवस्थाओं में संतुलन आया तो धरती कितने काल तक बनी रहेगी? सदा सदा के लिए बनी रहेगी। संबंध कब तक सुरक्षित रहेंगे? सब कब तक बढ़िया से सुखी रहेंगे? सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो लक्ष्य मूलक आस्वादन कैसे होंगे? सार्वकालिक मतलब सदा सदा, सभी काल के लिए सत्य हो गए। अब हम चाहते हैं निरंतर सुख, यही चाहते थे ना, निरंतर सुख। हम कर क्या रहे हैं? यहाँ से सोच रहे हैं ये हो जाए। तो हमको चलना कैसे था? लक्ष्य मूलक के लिए मूल्य मूलक समर्पित, मूल्य मूलक के लिए रुचि मूलक समर्पित, है ना। और खेती किसके लिए या उत्पादन किसके लिए समर्पित? इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए समर्पित। तो इस तरीके से अब अपने को चलना था। तो यहाँ पर क्या आ गया? संतुलन। तो संतुलन में सभी प्रकार के संतुलन आ गए, है ना। ऋतु संतुलन, ताप संतुलन, खनिज संतुलन, व्यवस्था में संतुलन, सभी प्रकार के। तो आप देखोगे यहाँ पर एक चक्रीयता। तो जब इस प्रकार के सभी संतुलन हो गए तो हमेशा उत्पादन निरंतर बढ़िया से बना रहेगा, किसी को भी वस्तुओं की, सेवाओं की कोई कमी नहीं होने पाएगी। तो एक प्रकार की ना ये आवर्तनशीलता को सिद्ध करता है, ये प्रमाणित होता है धीरे-धीरे। अभी बात पकड़ गए, थोड़ा ध्यान में गए। तो हमारा सिर्फ समस्या है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्षणिक वाले को ऐसे करते हैं। अब चूंकि हमारा तो डिजाइन था निरंतर सुखी होने वाला, तो हम क्या करते हैं? जैसे सुबह उठे, चलो अभी थोड़ा सोचा कि अभी बढ़िया सा नाश्ता करूंगा, उससे सुखी हो जाऊंगा, तो थोड़े क्षण के लिए
ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान नहीं जा रहा। हर बार एक्चुअली में घट रहा है। तो जीवन में जो ये अतृप्ति जिसको हम कह रहे हैं, उसको हमने कंटाड़ा आपको बताया कि ये चलते रहता है, चलो मूवी देख लेते हैं, कुछ और अच्छा ढोकला बना के खा लिया, फिर उसके बाद ये सिग्नल आपके अंदर बना रहता है। ये बात बोलते रहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया कंटाला। तो थोड़ी देर में ये दर्शन से पहले ऐसे होता था, सही तो है। ऐसा है। तो ये एक अद्भुत चीज है कि लक्ष्य को आप देखिए, ये अगर जागृति क्या चीज, जागृति कोई कठिन चीज नहीं है ना। इतनी सी चीज जागृति है कि लक्ष्य मूलक के लिए मूल्य मूलक का समर्पित हो जाना, मतलब पूरे मानव समाज को मिलकर के व्यवस्था के लिए समर्पित होना, है ना। और शरीर का इसके लिए समर्पित होना। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं, ये जागृति, ऐसा जीना सुखमय होता है। इसका प्रमाण आप प्रेम सिंह जी को देख ही क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग के अंदर भी दिखाई ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी कहानी है ये जागृति, ये मन की कहानी है। तो बस हम ये वाला जो चीज है ना, इसमें इतनी सी गड़बड़, कहाँ गया रुद्र, चला गया चलो, इतनी सी गड़बड़ बनी रहेगी बस, ये। लेकिन आपको ये समय में क्या सुख होगा, बिल्कुल होगा। ये समय पे सुख होता है, आप अच्छा बिस्किट खाइए, अच्छा कुछ नाश्ता पानी करिए, आपको ये आस्वादन आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहते हैं ना तृप्ति होगी, आहा मजा आ गया। पर ये मजा 3 घंटे बाद कुछ नहीं, फिर से वही क्रेविंग चालू हो जाएगी। तो ये आपको रहेगा। तो अभी हम लोग क्षण 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 जोड़ के सोच रहे हैं निरंतर बनाने के, वो बनता नहीं है। और जब मार्केट जो होता है वो क्षण को बढ़ाता जाता है। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, पैसा कंज्यूम, देखिए ये बड़ा एक विशियस साइकिल है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं बहुत सारा स्वादिष्ट खा के हम लोग मजा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली हम बॉडी को इन्फ्लेम करते रहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और टेक्निकली समझाने जाऊंगी, तो चलो क्लास समझाऊंगी, थोड़ा समझाती हूँ। डोपामिन हिट होता है एक प्रकार का ना, क्योंकि हमको ये क्रेविंग बढ़ते चली जाती है। आपको पता है, जैसे जो मिर्च खाने वाले लोग होते हैं ना, पहले थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तीखा लगता है, फिर एक समय के बाद उनको बहुत सारी मिर्च भी तीखी नहीं लगती, लेकिन उसकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ऐसा होता है। तो नम्बनेस आने लग जाती है धीरे धीरे, नम्बनेस मतलब सुन्न पड़ते चले जाते हैं। तो हमको उसकी डोज और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता लगती है। ये समय इसको साइकोलॉजी भैया आइडेंटिफाई किया, जानते हैं कैसे? इसका एक नाम है मिड लाइफ क्राइसिस। क्या होता है कि जब हमारा शरीर भोगने योग्य होता है 19-20 साल की उम्र में, तब से हम भोगना शुरू करते हैं, क्योंकि उसी समय हमारे पास धन का बल आता है। तो हम सोचते हैं कि हम पा जाएंगे, लेकिन जैसे 40 वर्ष की उम्र आती है ना, 40 वर्ष की उम्र आते समीक्षा होने लग जाती है, शरीर भोग के थक जाता है। ज्यादातर लोगों को शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती है उसमें। शरीर पता चलता है कि अच्छा ये शरीर को ध्यान भी रखना है, और जीवन में ये जो है ना, ये चीज खत्म नहीं होती, ये पीड़ा और बढ़ते चली जाती है। इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। आपको जान करके हैरानी होगी, हिंदुस्तान में मिड लाइफ क्राइसिस के अराउंड मतलब 35-40 इस समय महिलाओं के डेथ की संख्या बहुत बढ़ गई है। महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर वही महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद फिर किसी परिवार में जैसे भी समर्पित हुए उस तरीके से हुए, और ये पीड़ा बढ़ते चली गई। मतलब सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस या जो भी आ रही है, पर मोस्टली दिस इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। सारे संबंधों की विश्रंखलता इस उम्र में एक बड़ी समस्या है। तो अभी हमारे पास करना क्या था, हमको इतना करना था कि हमको बच्चे जैसे छोटे से थे ना, तब से संबंधों की समझ देनी थी। हमने क्या किया, देखिए यहाँ से गड़बड़ करते हैं, यहाँ से गड़बड़ करते हैं। तो मूल्य मूलक संबंध, बच्चा छोटा सा होता है, वो तो किसी की भी गोदी जाता है, जिसको कहते हैं ताई है, मौसी है, काकी है, चाची, सबको पहचानता, सबको अपना मानता है। फिर हम बोलते बेटा नहीं, वो उधर से मत खा के आना, ये तुम्हारा घर, उनके घर मत खाना, वो अपने नहीं है। धीरे धीरे हम बच्चे को क्या करते हैं, वो जो इसका आस्वादन करना चाहता है 3-4 साल के बाद, उसको हम धीरे धीरे यहाँ से काटते चले जाते हैं। ये उल्टा होता है। वो सबके साथ भाई बहन मित्र संबंध पहचानना चाहता है, स्कूल में बेटा प्रतिस्पर्धा, मेरा बच्चा राजा बेटा है ना, ये तो सबसे आगे। ये जो हम स्पेशल वाला भूत है ना, विशेषता का भूत, ये बच्चों में डालना शुरू कर दे। कौन फर्स्ट आया, ये विशेषता का भूत है। अब ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसी बात, हर बच्चा अपनी अपनी बैग उठाएगा, हर बच्चा अपनी अपनी बॉटल लेकर के आएगा, हर बच्चा अपना अपना भोजन करेगा, कोई किसी के टिफिन में से नहीं लेगा। आजकल नया शुरू किया शेयरिंग इज केयरिंग अभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसे नहीं, उल्टा सिखाते थे। तो हम सब है ना बिल्कुल, क्योंकि हम संबंध के बारे में टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं
बच्चा सिंपली कनेक्ट करना चाहता है। आप भी क्लास में आते हैं तो आपका सबसे बेस्ट टाइम जो है ना, एक तो ये रहेगा शिक्षा का भाग, लेकिन एक बेस्ट टाइम रहेगा आपके मित्र, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। मानव का डिजाइन है, मानव, अब देखो जब हम संबंध की शिक्षा नहीं तो क्या मिलजुल करके पता नहीं क्या बातें करें, कैसे सुख दुख शेयर करें, है ना, कैसे सुखी हों, या बल्कि इसके लिए कैसे लक्ष्य मूलक तक कैसे पहुंचे। तो प्लान क्या बनता है मित्रता में, चलो पिज्जा खावा जाए, चलो घूम, है ना, चलो हम घूमने जाते हैं, चलो हम पिज्जा खाने जाते हैं। तो हम पुनः क्या करते हैं, सारे संबंधों को ऐसे करके उल्टा कर देते हैं, उसमें तृप्ति आती नहीं, आएगी नहीं, उसका डिजाइन नहीं। ये अस्तित्व में एक डिजाइन है मन का, ठीक है। क्या अभी स्पष्ट हुआ आप लोगों को? दिलुभा, आपको ये स्पष्ट हुआ कि सुख यहाँ पर है, क्षणिक है, यहाँ पर दीर्घकालिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा जिन्होंने अखंड समाज के अर्थ में संबंधों को पहचाना हो, उनका सुख आपको दिखाई पड़ेगा, वो व्यक्त होते हुए दिखाई पड़ेगा, है ना। और जिन्होंने लक्ष्य मूलक आस्वादन एक बार चखा कि भैया ये संतुलन के लिए समर्पित होना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनसे ज्यादा सुखी आप तो व्यक्ति नहीं, मतलब हम तो नहीं देख, हमें उसके आगे कल्पना भी नहीं होती, हमारी कल्पना तृप्त हो जाती है। इतनी कल्पना बनती है, ये धरती स्वर्ग हो जाए, हर मनुष्य देवता बन जाए, और ये धरती अच्छे से मतलब रहे कि ये पूरे अखंड ब्रह्मांड के स्तर पर अपनी भागीदारी को प्रमाणित करे। इससे ज्यादा और क्या कल्पना करेंगे। तो मन की जो सुख की कल्पना है ना, यहाँ पर अगर मन का ऐसा बैरोमीटर है तो ये यहाँ तक लबालब भर जाता है पूरा। अभी हमारा बैरोमीटर केवल यहीं तक भरता है, ऐसे ऐसे भरता है और 3 घंटे बाद खाली हो जाता है, भरता है खाली हो जाता है। ये बढ़ ही नहीं रहा है, पारा जो है आगे चढ़ ही नहीं रहा है, पारा चढ़े रहता है, और ये पारा यहाँ तक चढ़ा तो फिर बात बन गई। ऐसा है, ऐसे आप देखोगे मानव में वो बड़े स्वयं स्फूर्त, एकदम खुश, एकदम दिखाई पड़ते हैं। मतलब रुचि मूलक है, तब तक जीवन में तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन का प्रयोजन क्या था, लक्ष्य मूलक। लक्ष्य मूलक में मूल्य मूलक को समर्पित होना, रुचि मूलक को मूल्य मूलक में समर्पित होना, ये डिजाइन था। हम लोग उसके अनुक्रम के विपरीत चल रहे हैं। विपरीत चलना मतलब हमको समझ नहीं, इसलिए चले, समझ जाए तो सही चलेंगे, है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ संबंध को पहचानना पड़ता है, फिर ये निर्वाह करते रहते हैं आपसे। तो संबंध मूलक सुख और लक्ष्य मूलक सुख या रुचि मूलक सुख, इन तीनों सुखों को भोगने के लिए या इन तीनों सुखों में जीने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। अगर समझदारी नहीं है ना, तो हम रुचि मूलक सुख को भी नहीं भोग कर सकते हैं, है ना, रुचि मूलक सुखी भी नहीं हो सकते। जैसे हमें मीठा खाना अच्छा लगता है, स्वीट अच्छा लगता है, तो स्वीट આપણે ખાઈએ તો કેટલું સ્વીટ ખાવું, કઈ રીતના બનાવીને ખાવું, હે ને, કયા સમયે ખાવું, એની જો સમજણ હોય તો ખાવાનો આનંદ થાય। નમસ્તે ભૈયા, નમસ્તે, સ્વાગત है। मानव जीवन में 3 प्रकार से मानव जीवन में, है ना, 3 प्रकार से सुखी होने की व्यवस्था है। एक सुख है जिसको कह रहे हैं रुचि मूलक सुख, जो हम शरीर के माध्यम से उसको ले सकते हैं, है ना। दूसरा है मूल्य मूलक सुख, जो हम मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने से हम सुखी हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और तीसरा है लक्ष्य मूलक सुख, जो कि जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा है, उसकी तृप्ति से, है ना, हम निरंतर सुख पूर्वक जी सकते हैं। ये 3 प्रकार के सुखी होने की मानव में व्यवस्था है। और ये तीनों प्रकार के सुख से जब मानव तृप्त होता है ना, तभी मानव जीवन की तृप्ति है। और ये जो सुख है वो लघु सुख है। लघु इसलिए है क्योंकि ये शरीर से ही प्राप्त हो सकता है।
ये दोनों जो सुख है इससे थोड़ा सा गुरु है। गुरु इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन तृप्ति समाई हुई है ना। और शरीर को जो चला रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमको चलना है तो शरीर चला है ना, हम रुक गए, हमने बोला रुक जाओ तो रुक गया शरीर है ना। तो शरीर को जो चला रहा है, चलाने का मतलब है बिठा रहा है, उठा रहा है ना, प्राण कोशिकाओं को जीवंत बनाए रख रहा है, वो कौन है? जीवन है ना। इसलिए जीवन गुरु है और शरीर लघु है। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। गुरु मूल्य का मतलब है मूल्य मूलक। जब हम संबंधों में जीते हैं, जो संबंध का सुख है, तो उसमें जो ये रुचि वाला सुख है वो समाया रहता है ना। जैसे हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हमें जो खाना बनाना होता है वो हम बना के खा लेते हैं या हमको बना के मिल जाता है। सबकी पसंद का ध्यान रखते हैं, पूछते हैं, अच्छे से खिलाते हैं ना, उसमें बिल्कुल। समय और अधिक बूस्ट हो जाता है बल्कि। तो जो संबंध में जब हम जीते हैं है ना, संबंध में जीने का मतलब है कि हम परिवार में संबंध को पहचानते हैं ना, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ संबंध को पहचानते हैं, संबंध में जीते हैं है ना। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो वैसे ही ठीक रहता है। जब हम संबंध में नहीं जी पाते हैं तब हम भोगों में व्यस्त होते हैं है ना। जब हम संबंध में नहीं जी पाते तो भोगों में व्यस्त होते हैं, हमें बोरिंग जैसा लगता है, परेशानी जैसा लगता है ना। फिर हम उसको भरने के लिए या तो व्यसन करते हैं ना, या तो हम गेम खेलते हैं है ना, या तो हम जो है कुछ और चीजें करते हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सार्थकता कितनी है इसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सार्थकता यहाँ से शुरुआत होती है, संबंधों को पहचानने से, संबंधों में जीने से। संबंधों में जीने का मतलब है कि दूसरा मानव भी जागृत हो जाए, मैं भी जागृत हो जाऊं, उसके लिए हमको एक दूसरे से सहयोग करना है और सहयोग को लेना है। सहयोग लेवानो છે અને सहयोग करवानो છે। तो इसका नाम है मूल्य मूलक सुख, जो इससे बड़ा है और इसमें ये समाया है ना। उसी प्रकार से जो लक्ष्य मूलक सुख है, लक्ष्य मूलक सुख का मतलब है जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा है इसका तालमेल हो जाए है ना। तो जब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का तालमेल हो जाता है, जब जीवन को पूरा अस्तित्व समझ में आ जाता है, जीवन को जीवन समझ में आ जाता है, जीवन को जीना कैसे है ये समझ में आ जाता है, जीना क्यों है ये समझ में आ जाता है, तो फिर जीवन में खुशहाली रहती है, निरंतर खुशहाली रहती है। जब निरंतर खुशहाली पूर्वक जब हम संबंधों में जीते हैं तो संबंधों में और बहार आती है और खुशहाली आती है। जब समझ नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है, संबंधों में जीने जाते हैं तो परेशान होते हैं, संबंधों में जी नहीं पाते, इसलिए रुचि मूलक सुख में ही हमें अपनी खुशी को ढूंढना हमारी बाध्यता है। उसके अलावा हम जाए कहाँ है ना, क्योंकि ये नहीं तो ये नहीं और ये नहीं तो ये, अब ये तो कुछ तो सुख तो प्राप्त करना है, क्योंकि सुखी होने का जो दबाव है, सुखी होने का जो एक स्थिति है वो तो बनी हुई है, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। नहीं, मेरे को सुखी नहीं होना है, ऐसा कुछ मैं कर दूं जिससे मेरे को सुखी होने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा संभव नहीं। बोलते हैं ना जो कि मानव सही करने का अवसर और गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। नहीं मिलता है तो जो है, जो उपलब्ध रहता है परिवार में, समाज में, वही करता है। सही बात। तो मानव है ना, मानव में तीनों प्रकार के सुख को भोगने की, तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त करने की आवश्यकता भी है और उसकी व्यवस्था भी है। व्यवस्था का मतलब ये है जैसे हमें शब्द से सुखी होना है ना, तो मानव के पास शब्द भी है। स्पर्श से सुखी होना है तो मानव के पास स्पर्श भी है। रूप से सुखी होना है तो मानव के पास आंख भी है। रस से सुखी होना है तो है ना, जीभ भी है। गंध से नाक भी है। व्यवस्था है, हो सकते हो है ना। लेकिन ये सब होना क्यों है? तो संबंध में जीने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, जो मानव का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये एक बात हुई। तो इन सभी प्रकार के सुखों को अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यकता किसकी है? समझदारी।
समझदारी के बिना हम इसमें से किसी भी प्रकार के सुख को, है ना, प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का सुख, चाहे वो रुचि मूलक हो, मूल्य मूलक हो, लक्ष्य मूलक हो, उसमें शरीर का स्वास्थ्य हो, है ना, फिर लाभ हो, ये किसी भी प्रकार का सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते। घर का भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे पास घर भी है तो घर का भी सुख हमें नहीं लगेगा। हमें दूसरों को घर देख के हमें लगेगा यार हमारा घर तो छोटा है ना, हमें लगेगा कि हमारे घर में तो अभी ठीक से पुताई नहीं हुई है, हमें लगेगा कि हमारे घर में तो जो है पंखा है, उसके घर में तो एसी है ना। तो ये बना रहेगा, अभाव बना रहेगा, मानसिक अभाव। कंपेयर करके जिएंगे, कंपेयर करके बाजू वाले का तो मेरे से बड़ा है, बाजू वाला तो मेरे से बड़ा है ना। तो ये छोटा बड़ा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि समझ नहीं। जब हम समझदार हो जाते हैं तो छोटा बड़ा जो है वो अपने आप जो है विलय हो जाता है, परस्पर उपयोगिता पूरकता शुरू हो जाती है ना। जैसे हमारे पास जो है गाड़ी है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो पड़ोसी को पता है कि हमारा पड़ोसी ऐसा है, जब भी गाड़ी की जरूरत होगी तो हमको मिल जाएगी। और ये पड़ोसियों को भी पता है कि सामने वाले को जरूरत है तो उसको आने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पहले पहुंच जाऊंगा। इसका नाम क्या है? समझदारी। नासमझी में क्या होता है? नासमझी में जो जिसके पास नहीं होती है उसको अभाव लगता है, जिसके पास होती है उसको अहंकार लगता है, उसको भी अभाव लगता है दूसरे की देख के। और उसको और अभी तो एक और चलन है कि और भी फीलिंग कराना चाहते हैं, है ना, दिखाना चाहते हैं, है ना, कि भाई हमने जो है ये कपड़े लिए हैं, तो जब तक कपड़े दूसरे व्यक्ति देख के उसकी वाहवाही ना करे तब तक हम खुश नहीं होते। हमने साड़ी पहनी है ना, हमने कपड़े पहने हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी वाहवाही ना करे तो तब तक उसको रिस्पेक्ट फील नहीं होता है। तो हमारी जो रिस्पेक्ट की भूख है, जो सम्मान की भूख है ना, वो बनी रहती है। जब समझदार होते हैं तब हमें पता है कि हमारा जो सम्मान है वो समझदारी से जीने से। समझदारी पूर्वक जब हम जीते हैं तो हम अपने में सम्मान महसूस करते हैं, और जब तक समझदारी से जीते नहीं तब तक असम्मान बना रहता है और दूसरों से सम्मान पाने की भूख जो है हमारी बनी रहती है। तो इन सब के लिए आवश्यक बिंदु क्या निकल के आया? सुखी होने के लिए आवश्यक बिंदु क्या निकल के आया? समझदारी, है ना। तो ना मैं आहार से सुखी हो रहा हूँ, है ना मैं निंद्रा से सुखी हो रहा हूँ, ना मैं भय से सुखी हो रहा हूँ, ना मैं प्रलोभन से सुखी हो रहा हूँ, है ना मैं आस्था से सुखी हो रहा हूँ, ना मैं सुविधा संग्रह से सुखी हो रहा हूँ। तो मानव का जो सुख है वो केवल और केवल समझदारी से ही है, क्योंकि इन सबको भोगने के लिए, इन सब का उपयोग करने के लिए समझदारी की परम आवश्यकता है। आहार का सुख प्राप्त करने के लिए आहार की समझ की जरूरत है, निंद्रा का सुख प्राप्त करने के लिए निंद्रा की समझ की जरूरत है ना। और भय की जगह सुरक्षा के साथ जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको भय स्वीकार नहीं है ना। तो हर चीज को जीने के लिए पूरी समझ की जरूरत है, और हर चीज को समझने के लिए पूरे अस्तित्व को समझना जरूरी है। अस्तित्व को समझने के लिए हमारे पास कैपेसिटी बनी हुई है। क्या बना हुआ है? अक्षय बल और अक्षय शक्ति। क्या हो रहा है इसमें? जनक भाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके पास है अक्षय बल और क्या है? अक्षय शक्ति। अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी खत्म नहीं होती या कम नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं हो रही है, जो कभी कम नहीं हो रही है, इसका नाम क्या है? अक्षय। જે ક્યારે ઓછી નથી થતી અને જ્યારે કોઈ ક્યારે જે છે પૂરી નથી થતી, ઓછી પણ નથી થતી અને ખતમ પણ નથી થતી, હે ને, એનું નામ છે અક્ષય। એવી અક્ષય શક્તિ જીવનમાં છે। કેવી શક્તિ છે? અક્ષય, જે ક્ષય જ ના થાય। એ કયા સ્વરૂપમાં છે? તો આપણે કેટલા પણ વિચાર કરીએ, વિચાર કરવાની તાકાત આપણી અંદર ઓછી થાય છે કે ના હવે હું વિચાર નથી કરી શકતો એવું થાય છે। વિચાર કરવાની તાકાત આપણી પાસે બનેલી છે। આપણે ગમે તેટલી ઈચ્છાઓ કરીએ પણ ઈચ્છા કરવાની તાકાત આપણી પાસે બનેલી છે। આપણે ગમે તેટલી જે છે સુખી થવા માટેની આશાઓ કરીએ, આશા કરવાની તાકાત બીજી જે છે આપણી જોડે બનેલી હોય છે કે નથી હોતી? એનું નામ છે અક્ષય બલ, અક્ષય શક્તિ।
આપણે ગમે તેટલા આસ્વાદન કરીએ સુખી થવા માટેના, પણ એવું થાય છે કે ના હવે મારે આસ્વાદનો નથી કરવા, એવું થાય છે. આસ્વાદન કરવાની તાકાત બને જ રહે છે. ગમે તેટલા ચયન કરીએ પણ ચયન કરવાની ક્ષમતા બને જ રહે છે. ખ્યાલ આવે છે? ગમે તેટલા તુલન કરીએ પણ તુલન કરવાની તાકાત બનેલી હોય છે. વિશ્લેષણ કરો ગમે તેટલા, ગમે તેટલા વિશ્લેષણ કરો, વિશ્લેષણ કરવાની તાકાત બનેલી જાય છે, હે ને? તો એનો અર્થ એ થયો કે માનવ પાસે જે જીવન નામની વસ્તુ છે એ અક્ષય બળ અક્ષય શક્તિ સંપન્ન છે. જે શરીર છે એ અક્ષય બળ અક્ષય શક્તિ સંપન્ન નથી, એ ક્ષયશીલ છે. જેવી રીતના કે આપણે હે ને કોઈ વસ્તુને ઊંચું કરી અને ઘઉંની બોરીને ઊંચી કરીને ક્યાંય લઈ જઈએ તો પછી થાકી જઈએ, હે ને? જીવન નથી થતું. सही बात જીવન જે છે એની વિચાર કરવાની, ઈચ્છા કરવાની, હે ને, આશા કરવાની તાકાત એટલી કે અહીંથી ધારો કે ઈચ્છા કરીને ત્યાં પહોંચે ને તો ત્યાં પહોંચીને વધારે ઈચ્છા કરવાની તાકાત થશે. ખ્યાલ આવ્યો? ધારો કે આપણે એક મહિનામાં જે છે 5000 રૂપિયા કમાયા તો આવતા મહિને 10000 કમાવાની તાકાત આવશે ઈચ્છા શક્તિમાં, 5 ની નહીં આવે. એવું થાય છે કે નથી થતું? તો આ અક્ષય બળ અને અક્ષય શક્તિ હોવાના કારણે, નહીં તો થાકી જવા જોઈએ કે આનું બહુ કમાઈ લીધું હવે નથી કમાવું, એવું થાય છે. એવી જ રીતના સંબંધની અંદર આપણે જેટલું ખુશાલીથી જીવીએ, संबंध के अंदर जितना खुशहाली से हम जीते हैं और खुशहाली से जीने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है. जितना जीते हैं उससे ज्यादा ताकत आ जाती है. क्यों? क्योंकि अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न जीवन है, इसलिए. तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या निकल के आया? समझदारी का. समझदारी यानी क्या? समझदारी નો અર્થ છે જ્ઞાન, વિવેક, વિજ્ઞાન, સંપન્નતા. જ્ઞાન, વિવેક અને વિજ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે શું? અસ્તિત્વને સમજવું, જીવનને સમજવું, માનવીયતાપૂર્ણ આચરણને સમજવું. આ સમજવાની તાકાત કોની પાસે છે? જીવનની પાસે. કેટલી તાકાત છે? અક્ષય છે. અક્ષય એટલે જ્યાં સુધી સમજશો નહીં ત્યાં સુધી છૂટકો નથી, કારણ કે જીવન પાછું અમર છે. ખ્યાલ આવે? જીવન અમર છે એટલે જ્યાં સુધી તમે સમજશો નહીં ત્યાં સુધી તમારી પાસે જે છે સમજવાની બાધ્યતા છે. ક્યાંયથી છૂટી જ નહીં શકો. સુખી થવાની અંદર ડિઝાઇન બનેલી છે. સુખ મળશે નહીં એટલે પાછા સુખી થવા માટે પ્રયત્નો ચાલુ રાખશે. તાકાત અક્ષય છે એટલે થાકશો નહીં. એટલે સુખી થવું, સમજદાર થવું એ માણસની બાધ્યતા છે. ખ્યાલ આવે? मानव की बाध्यता है, उससे मानव छूट नहीं सकता कि नहीं मुझे सुखी नहीं होना है, मुझे समझदार नहीं होना है. होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल. जितना परेशान होना है उतना देरी से समझदार हो. जितना परेशान होना है, जितना दुखी रहना है उतना देरी से समझदार हो. जितना सुखी होना है, जितना प्रसन्न होना है उतना जल्दी से समझदार हो. और ये मानव के पास अधिकार है कि कब होना है कब नहीं होना. बात समझ में आ रही है? क्या सही बात है? શું કહો છો? તુલન તુલનનો જો આપણે ચર્ચા નથી કરી, તો ચર્ચા કરવાની બાકી છે તુલનની. કાલે આપણે મૌખિક રૂપમાં ચર્ચા કરી હતી, હે? આજે જે છે આપણે કાલે નથી, આજે આ ચર્ચા નથી કરી, આના ઉપર ચર્ચા કરવાની બાકી છે, હે ને? તો અત્યારે તો આપણે ચર્ચા કરી રહી છીએ કે સમજદારીની આવશ્યકતા છે કે નહીં. હું નહીં સમજદાર છું તો ચાલશે, એના ઉપર વાત કરી રહ્યા છે. સુખી થવું છે, સમજ વગર સુખ નથી, તો સમજદાર થયા વગર કઈ રીતના છૂટકો છે? શું કરશો? સમજદાર થવું જ પડશે. ઘરમાં આપણે રહીએ જ છીએ, ઘરવાળાઓને સમજીશું નહીં, મમ્મી પપ્પાને સમજીશું નહીં તો રોજના કજિયા થવાના જ છે. કેટલો સમય તમે બહાર રહેશો, ઘરની બહાર? અને બહાર જશો ત્યાં બી માનવ જ મળશે મિત્ર રૂપમાં, તો એની જોડે જીવવાનું તો છે જ. એને નહીં સમજીએ તો એ પાછા જે છે હેરાન થવાના છે. એટલે જ્યાં જાઓ ત્યાં હેરાનગતિ છે સમજણ વગર. ગમે તે પ્રાપ્ત કરી લીધું, સમજણ વગર તો હેરાનગતિ છે. સમજદાર થઈ ગયા, જ્યાં જશો ત્યાં ખુશાલી છે, જ્યાં જશો ત્યાં મજા છે. પોઝિટિવ થિંકિંગ. પોઝિટિવ, હે? પોઝિટિવ થિંકિંગ. પોઝિટિવ થિંકિંગ નહીં, છૂટકો નથી. માણસને સુખી થયા વગર છૂટકો નથી, સમજદાર થયા વગર છૂટકો નથી. બાધ્યતા છે. વિચારો, સકારાત્મક વિચારો હોય. હું શું કહું છું, સકારાત્મક વિચાર તો એ છે કે જ્યારે આપણે છે નહીં એને વિચારીએ છીએ. આ તો રિયાલિટી જ છે, ના નકારાત્મકતાની વાત છે ના સકારાત્મકતાની વાત છે. આ છે જ.
માણસને સુખી થવું જ છે. સુખી થવા માટે જે છે કંઈક ના કંઈક કરી જ રહ્યો છે, હે ને? ક્યાંક ના ક્યાંક જે છે ફાંફા મારી જ રહ્યો છે. ફાંફા એટલા માટે કારણ કે જ્યાં છે નહીં ત્યાં શોધે છે, જ્યાં છે ત્યાં શોધતો નથી, એટલા માટે ફાંફા છે. સમજણ હોય તો ખબર પડે કે આ જગ્યાએ છે ને અહીંથી મળશે એટલે ત્યાં મળી જાય. ખ્યાલ આવે છે? પાણી પીવાથી તરસ छिपाય છે. જો ખબર હોય તો પાણી પીવે તો તરસ छिपाય. પણ સમજણ એ હોય કે ના ભાઈ જે છે હું તો ખાવાનું ખાઈશ તો તરસ छिपाશે, તો જેટલું ખાવાનું ખાય એટલી તરસ વધે. ખ્યાલ આવે? એનું નામ ફાંફા છે. સમજણ હોય તો ખબર પડે કે આ વસ્તુ અહીંથી મળવાની છે, ત્યાં શોધે. એટલે સમજદાર થવું એ આપણા માનવની આવશ્યકતા છે. સમજદારી એટલે શું? સમજદારી એટલે જ્ઞાન, વિવેક, વિજ્ઞાન સંપન્ન થવું. જ્ઞાનને સમજવું, વિવેકને સમજવું અને વિજ્ઞાનને સમજવું. જ્ઞાન એટલે શું? અસ્તિત્વ દર્શન જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે શું? જીવન જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે શું? માનવીયતાપૂર્ણ આચરણનું જ્ઞાન. બરાબર? વિવેક એટલે શું? લક્ષ્યનું જ્ઞાન. લક્ષ્ય એટલે શું? જીવનનું અમરત્વ, શરીરનું નશ્વરત્વ અને વ્યવહારના નિયમનો બોધ થવો. એનું નામ છે विवेक. हिंदी में भी बोलते रहिएगा. हाँ, तो उसका मतलब है विवेक. विवेक का मतलब ये है कि हमको ये समझ में आ गया कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है. इसका नाम विवेक है. तो उचित और अनुचित कहां से तय होगा? जीवन के अमरत्व से और शरीर के नश्वरत्व से, है ना? तो जब हमको पता चल गया जीवन अमर है, तो अमरत्व वाली जो चीज है उसके लिए अमरत्व वाली चीज, और जो नश्वर है उसके लिए नश्वरता वाली चीज, दोनों को हम सही प्रपोजल में देते रहे ताकि हमारी सुख की निरंतरता बनी रहे. अविवेक क्या है? अविवेक ये है कि हम शरीर को अमर माने. शरीर अमर है, मैं शरीर हूं, है ना? मेरी युवानी, मेरी जवानी जो है हमेशा बनी रहेगी, ये हम जब मानते हैं इसका मतलब है क्या है? विवेक नहीं है, अविवेक है ना? 50 में भी 20 का दिखते रहे. तो मानव का आहार शाकाहार है या मांसाहार है, इसको समझ लेना, इसका नाम विवेक. मानवीय व्यवहार और अमानवीय व्यवहार का जो भेद है उसको समझ लेना, इसका नाम विवेक. मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य इसको समझ लेना, इसका नाम विवेक है ना? तो ये विवेक होता है. और तीसरा जो भाग है उसको कह रहे हैं विज्ञान. विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है? दिशा. दिशा को स्पष्ट करना, किस दिशा में हमको जाना है. ये जो लक्ष्य है वो हमको किस दिशा में मिलेगा. तो हमें पहले समझ मिल गई. समझ क्या मिल गई? कि पूरा अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है ना, करना क्या है, ये सब कुछ हमने समझ लिया. अब हमने लक्ष्य तय किया कि हमें जो है अभी सूरत जाना है ना? सूरत जाके हमको कुछ करना है, तो ये हमने तय कर लिया. लेकिन सूरत किस दिशा में है? पाकिस्तान की तरफ की दिशा में है ना? अफ्रीका की तरफ की दिशा में है ना? या पंजाब की तरफ है? किस दिशा में है? उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में, कौन सी दिशा में? अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो सूरत मिलेगा. अगर आप उस दिशा में जाओगे तो सूरत कितना भी चले जाओ सूरत मिलेगा. तो दिशा निर्धारित करना ये विज्ञान का काम है, जिससे हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है. और लक्ष्य प्राप्त करने से ही हम तृप्त होते हैं. लक्ष्य क्या है हमारा? सुख है ना? सुख हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है, और उसको दूसरी भाषा में समाधान कहते हैं. समाधान ही सुख है. तो ये लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. और दिशा को समझने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, लक्ष्य को समझने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है. तो अब विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान का मतलब है कालवादी, फिर क्रियावादी और निर्णयवादी. इन तीनों चीजों का ज्ञान हो. काल का अर्थ है क्रिया की अवधि, है ना? तो कोई भी क्रिया है उसकी एक अवधि होती है ना? उसका एक विस्तार होता है. कोई भी क्रिया का एक, जैसे ये मानव शरीर है
तो मानव शरीर का जो काल है, मानव शरीर की जो क्रिया है ना, उसका एक विस्तार है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। दूसरा उसका एक अवधि रहती है कि मानव शरीर जो है इतने समय तक रहेगा, 80 साल है ना, 100 साल, उसके बाद फिर वो शरीर जो है वो विरचित हो जाएगा। तो उस चीज को समझना है ना, उसका नाम है काल को समझना। और अस्तित्व में जो काल है, काल यानी क्रिया, क्रिया जो है वो निरंतर है, क्रिया जो है खत्म नहीं होती है। क्रिया में जो है वो रूप परिवर्तन होता है, रूप का परिवर्तन। जैसे शरीर में जो प्राण कोशिका रूपी जो क्रिया है, वो प्राण कोशिका जो है विरचित होकर मिट्टी बन जाती है ना। तो ये जो मिट्टी बन गई उसके बाद क्रिया तो रह रही है, क्रिया खत्म नहीं हो रही है ना। धरती है, धरती जो है ये अपने धरी पर रोटेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है। तो ये क्या हो रहा है, धरती की क्रिया हो रही है। तो धरती की क्रिया जो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, धरती जो है, ये सूरज है, धरती ऐसे घूमती है तो सूरज के सामने आती है, कोई एंगल सूरज के सामने आता है, कोई एंगल सूरज के सामने नहीं आता है। तो जो सूरज के सामने आ रहा है उसको हम कह रहे हैं दिन, दिन मतलब है ना। और जो सूरज के सामने नहीं आ रहे उसको हम क्या कह रहे हैं, है ना, उसको हम रात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दिन रात ऐसे हो रही है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्रिया हो रही है, धरती की क्रिया और सूरज की क्रिया, उसको हम दिन कहते हैं। फिर धरती जब सूरज की चारों ओर घूम लेती है उसको हम क्या कहते हैं, साल कहते हैं। एक साल हो गया। तो एक साल का मतलब क्या हुआ कि धरती ने सूरज की चारों ओर जो है घूम लिया। हुआ क्या, साल नहीं हुआ, हुआ क्या, दिन नहीं हुआ, हुआ क्या, रात नहीं हुई। ये हमने बताया दिन रात। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि धरती घूम रही है सूरज की चारों ओर। समझ में आ रहा है। तो ये काल को समझना और क्रिया को समझना, क्रिया को, दोनों को समझना। जैसे हम खेती कर रहे हैं है ना, तो खेती में हमको किसको समझना होता है, काल को समझना पड़ता है ना। खेती में काल क्या है, जैसे किस बीज को कौन से समय हमको ना धरती में रखना है ना। फिर धरती में भी काल होता है। धरती में काल क्या है, तो अलग अलग प्रकार की धरती होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है। इन सबको समझना, उसकी क्रिया को समझना कि जैसे अगर हम इसका पेड़ उगा रहे हैं, आम का पेड़ उगा रहे हैं, तो आम का पेड़ कितने समय में फल देगा, है ना। सब्जी उगा रहे हैं तो सब्जी कितने समय में फल देगा, ये कितने समय में फल देगा। तो इसको बोल रहे हैं काल और क्रिया का क्या। फिर उसके बीच में हमको निर्णय लेना होता है ना। निर्णय का मतलब क्या है कि हमने समझ लिया कि ये बीज है, ये जमीन है, ये इस समय में उगाने से ये होगा, लेकिन हमको उसमें रखना होता है, जमीन में उसको खड्डा खोद के रखना होता है। अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, हमें काल का पता है, क्रिया का पता है ना, तो उससे निर्णय नहीं होगा, तो फल परिणाम नहीं मिलेंगे। तो दिशा निर्धारित का मतलब है काल और क्रिया का तो पता हो, लेकिन हम उस दिशा का निर्णय लेके हमें चलना है ना, हमको चलना है। चलना निर्णय ले लिया तो हो गया। जैसे हम चाय बनाते हैं है ना, तो चाय में हमको अगर पता है कि किस प्रकार से हमको पहले तपीला रखना है ना, फिर पहले पानी रखना है, ये रखना है, वो, लेकिन सब कुछ पता है, लेकिन हम करेंगे नहीं तो चाय बनेगी। तो करने के लिए निर्णय लेना होता है, वो निर्णय ही जो है वो क्रिया को क्रियान्वित करता है ना। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान, वो विज्ञान अल्टीमेटली है किसके लिए, अल्टीमेटली है व्यवसाय के लिए। किसके लिए है, व्यवसाय के लिए, उत्पादन के लिए, है ना, कि हम उत्पादन जो है वो नियम से कर पाए। जो व्यवहार है, वो व्यवहार जो है वो विवेक की समझ को, विवेक की समझ से जो है व्यवहार हो पाता है, जिससे हम सुखी होते हैं। और ये जो ज्ञान है उससे हमारा विचार तृप्त होता है ना, विचार और अनुभव। तो ज्ञान से विचार तृप्त हुआ है ना, और अनुभव तृप्त हुआ। विवेक से, विवेक की समझ से व्यवहार तृप्ति हुई, और विज्ञान की समझ से व्यवसाय की तृप्ति हुई। तो इस प्रकार से मानव में जो चार आयाम है, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम, ये चारों आयाम की तृप्ति जो है वो समझदार होने से होती है। समझदारी का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता, है ना। तो ये
समझदारी होने से हमने मानव की जो पूर्णता है, चारों आयाम, उसकी तृप्ति को हमने पाया। अगर हमारे पास केवल अच्छा व्यवसाय हम कर रहे हैं तो इससे क्या मानव जीवन सफल हो जाता है? केवल व्यवसाय अच्छा करने से नहीं होता है, क्योंकि मानव में व्यवहार भी है। केवल व्यवहार और व्यवसाय अच्छा करने से मानव जीवन तृप्त हो जाता है? नहीं, क्योंकि विचार भी है, तो विचार की तृप्ति भी आवश्यकता है। केवल विचार, व्यवहार और व्यवसाय करने से जीवन तृप्त हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि मानव में अनुभव भी है। तो केवल हम व्यवसाय मूलक जीवन जीते हैं, इसको कहते हैं अमानियता। होता सब कुछ है लेकिन प्रधान व्यवसाय हो जाता है, इसका नाम है अमानियता। केवल हम व्यवहार और व्यवसाय को ध्यान में रख के हम जीवन जीते हैं, इसका नाम है मानवीयता। हम विचार, व्यवहार और व्यवसाय मूलक जीवन जीते हैं, इसका नाम है देव मानवीयता। और जब हम अनुभव मूलक जीते हैं या अनुभव के लिए जीते हैं, उसका नाम है दिव्य मानवीयता। तो ये कुल मिलाकर जीवन तृप्ति और मानव का जो शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं, शिक्षा का मतलब होता है संपूर्ण विकास। जो संपूर्ण विकसित कर दे उसका नाम शिक्षा है। तो संपूर्ण क्या है? अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ये चारों चीज संपूर्ण है। अगर ये चारों चीज शिक्षा से पूरी नहीं हो रही है तो वो शिक्षा जो है वो सफल नहीं, असफल है ना। तो अब केवल इन चारों को तृप्त नहीं होना है, इसमें व्यक्ति को भी तृप्त होना है, परिवार को भी तृप्त होना है, समाज को भी तृप्त होना है, राष्ट्र को भी तृप्त होना है, अंतरराष्ट्र को भी तृप्त होना है ना। तो इन सब के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, न केवल व्यवसाय के लिए। तो ये जीवन विद्या जो आपके सिलेबस में है वो इसीलिए है क्योंकि आप समझदार बने। आप समझदार बनेंगे तो आप चारों आयामों में जी पाएंगे। चारों आयामों में जी पाएंगे तो आप व्यवसाय भी बढ़िया कर पाएंगे, आप व्यवहार भी अच्छा कर पाएंगे, आप विचार भी अच्छा कर पाएंगे और आप अनुभव को भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये जो है ठीक है। तो 11:30 बजने आया है, अभी अपने बात को इधर रखते हैं। हाँ, अनुभव, विचार, व्यवहार અને વ્યવસાય। તો વ્યવસાય એટલે શું? જે માણસ માનવેતર પ્રકૃતિ સાથે જે કાર્ય કરે છે એનું નામ વ્યવસાય છે। માણસ માણસ સાથે સંબંધપૂર્વક જીવે છે એનું નામ વ્યવહાર છે। માણસની અંદર જે મન, વૃત્તિ, ચિત્ત છે એની અંદર વિચાર ક્રિયા છે એનું નામ વિચાર છે। અને જે બુદ્ધિ અને આત્મા છે એની અંદર અનુભવ કરવા માટેની ક્ષમતા છે, હે ને? એ રીતના જી। મતલબ સુખી થવા માટે આખા અસ્તિત્વને આપણે સુખી કરવું પડશે। અસ્તિત્વને સુખી નથી કરવાનું, સમજદાર થવાનું છે। અસ્તિત્વ તો સુખી જ છે, અસ્તિત્વમાં આપણે કોઈ જે છે ડામાડોળ કરવાનું નથી, આપણે ખાલી સમજદાર થવાની વાત છે। અસ્તિત્વ તો જુઓ ને, એડિટિસ પંખો જુઓ, આ બધું એકદમ સુરજ નિશ્ચિત આ છે। હા, મજામાં છે, બહુ કંઈ આપણે તકલીફ નથી અસ્તિત્વમાં। આપણે મજામાં થવાનું છે। મજામાં થવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? સમજદાર થવાનું। સમજદાર થવા માટે શું કરવાનું છે? આ જ્ઞાન, વિવેક અને વિજ્ઞાનને સમજવાનું છે। આટલું જ કરવાનું છે, આટલી જ માણસની મહેનત છે। આટલું કરી લીધું પછી માનવ જીવન સફળ। ઠીક છે, તો આપણે અત્યારે આટલું રાખીએ, પછી મળીએ।